Hello students, the next topic is difference between molarity and molality. There are two different terms, molarity and molality. So let's find out some points of difference between these two. In case of molarity, its symbol is capital M. जो molarity है, its symbol is capital M, and the symbol of the term molality, the symbol of term molality is small m. The first difference is their symbols. It is capital M, it is denoted by capital M, and it is denoted by small m. And the next point is their definition. Molarity की definition और molality की. So definition of the molarity is number of moles of solute divided by volume of the solution in liters. In case of molality, the numerator will be the same. The number of moles, definition of molality, the number of moles of solute divided by volume की जगह पे आ जाएगा mass of solvent in kgs. Mass of solvent in kgs. So this is the difference between these two in terms of the definition. And the last point is molarity changes with temperature and molality does not change with temperature. So इसको समझना पड़ेगा कि molarity है वो change क्यों होती है, molarity है वो change क्यों होती है temperature के साथ. इसके लिए अगर हम इसके फॉर्मूले पे जाएं, what is the formula of molarity? molarity का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, number of moles of solute, molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. So molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. So नीचे जो denominator था, in denominator there is a volume of solution, and as we know, when we increase the temperature, any substance, anything, it will start expanding. When we increase the temperature, every substance starts expanding. So expanding means its volume will increase, and when we increase the temperature, volume increase, and volume increase, then molarity will change, means molarity decreases. So on molarity there is an impact of temperature, because with temperature volume changes, and with volume change molarity changes, as volume is in the formula of molarity. So molarity changes with volume and volume changes with temperature, therefore molarity changes with temperature. What it is not the case in molality. If we see the formula of the molality, then in denominator there is mass of solvent in kg. There is mass of solvent in kg, not in volume. So if we increase the temperature or if we decrease the temperature, there is no impact on mass. जो उसका mass है, जो weight है किसी भी सब्सटेंस का, वो चेंज नहीं होता विद चेंज इन टेम्परेचर. जो मास चेंज नहीं होगा तो मोलैलिटी भी चेंज नहीं होगी. सो द बेसिक डिफरेंस अराइजेज फ्रॉम द फॉर्मूला दैट इन केस ऑफ मोलैलिटी देयर इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इन डिनोमिनेटर, बट इन केस ऑफ मोलैलिटी in denominator there is volume. Therefore as in molarity there is volume changes with temperature, therefore molarity also changes with temperature, but in case of molality mass does not change with temperature, therefore molality also does not change with temperature. So this is very important point when we talk about the difference between these two. And the next one is the numerical problem on the basis of molality. We have to calculate molality of a solution. Which solution? In which contain 20.7 gram of potassium carbonate. Potassium carbonate यहाँ solute है, K2Cr3. potassium carbonate, the formula of potassium carbonate is K2CO3. It is solute. Its weight in gram is given. How much weight in gram is given? 20.7 grams. So we have written weight in gram, W, amount of K2CO3, weight in gram of K2CO3 is given 20.7 gram. And what else is given? Dissolved in this much amount is dissolved in 500 ml of solution. So now ml means volume, solution का जो volume है वो given है, the volume of solution is given. And what else? Assuming that density of the solution is also given.
So now let's find out the molality. You should know, students, you should know the formula of the molality. Molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So if you want to find out molality, then you should know number of moles of solute and divided by mass of solvent in kg. सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलके ही सोल्यूशन बनता है. अब हम देखते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट क्या है? K2CO3. So weight in gram of K2CO3 is given and the molar mass means molecular mass of K2CO3 we can calculate by its atomic mass. So पोटाशियम 2 है. So एक पोटाशियम का जो मास है 39 है, 2 का हो जाएगा 39 into 2. देन अगेन कार्बन का मास है 12 एंड ऑक्सीजन का मास है 16. 3 ऑक्सीजन है तो 16 into 3. So if we add these atomic masses then we will get 138. So molar mass of potassium carbonate is 138. So if we know the weight in gram and molar mass then we can calculate number of moles n. So weight in gram given है 20.7 ग्राम, मोलर मास हमने निकाल लिया तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.15. तो ये एक पार्ट हमने इस न्यूमेरिकल का निकाल लिया. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया. अब हमें निकालना है मास ऑफ सोलवेंट. दिया क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है. अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिया है? 500 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है. तो हमें चाहिए क्या? मास ऑफ द सोलवेंट. सो वॉल्यूम से मास कैसे निकालना है? सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, हमें सोलवेंट का मास चाहिए. कैसे निकालना देखते हैं. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज दिस. अगर हमें वॉल्यूम पता है, सोल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ एनी सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सो मास अगर हमने निकालना है सोल्यूशन का, वॉल्यूम से मास निकालना है तो मास विल बी इक्वल टू ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. सो मास ऑफ सोल्यूशन से वॉल्यूम कितना दे रखा है सोल्यूशन का? 500 ml, डेंसिटी 1 दे रखी है तो 500 ग्राम. तो सोल्यूशन का मास आया, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? सोलवेंट का मास ऑफ सोलवेंट इन केजी. तो लेकिन हमें ये पता है कि मास ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द सोलवेंट प्लस मास ऑफ द सोल्यूट. सो मास ऑफ द सोलवेंट हमने निकालना है और मास ऑफ द सोल्यूट हमें गिवन है. वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा था, कितना था? 20.7 ग्राम दे रखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. सो और मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है हमारे पास? 500 ग्राम. मास ऑफ द सोल्यूट कितना है? 20.7 ग्राम. और मास ऑफ द सोलवेंट हमने निकालना है, तो मास ऑफ द सोलवेंट है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास मास ऑफ द सोलवेंट आ जाएगा. इट इज़ इन ग्राम्स बट वी नीड टू कैलकुलेट इट इन kgs. So to convert this grams into kg we have to divide it by 1000, it will become kg. So now we have mass of the solvent. So if you see the formula, molality is equal to number of moles of solute divided by mass of the solvent in kg. number of moles हमने निकाल लिए थे, mass of solvent in kg भी हमने निकाल लिया है. तो बस पुट ही करना, इसमें वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स पुट कर दिए और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो अगेन you should know the formula of the molality is number of moles of solute. You can calculate number of moles, it is equal to weight in gram divided by molar mass. mass of solvent के लिए हमें mass of solution चाहिए था, वो mass of solution 500 ml से 500 ग्राम हो गया क्योंकि डेंसिटी 1 थी. तो मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया. मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा था, मास ऑफ सोलवेंट इजीली निकल जाता है क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट. यहाँ से मास ऑफ सोलवेंट आ गया, ग्राम में उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें मास ऑफ सोलवेंट इन केजी की. ये बड़ी इजीली हम न्यूमेरिकल वो सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज ऑन द बेसिस ऑफ मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन के बेस पे हमें क्या दे रखा है? Solution is prepared by adding 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल है, उसका फार्मूला होता है CH3OH. दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल. सो मिथाइल अल्कोहल दे रखा है कितने ग्राम? 60 ग्राम. और किसमें डाला है? 120 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमारे पास वाटर का फार्मूला पता है H2O. कितना ग्राम दे रखा? वेट इन ग्राम 120 ग्राम. सो वेट इन ग्राम दे रखे हैं हमें. चलो देखते हैं अभी हमने निकालना क्या है. मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर. हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर
and mole fraction of methanol. And we already know the formula of mole fraction. Mole fraction of water will be equal to number of moles of water divided by total number of moles. ये मिक्सचर बना किससे है, ये सोल्यूशन बना किससे है, ये वाटर से बना है और प्लस मिथेनॉल से बना है. सो मोल फ्रैक्शन अगर हमने निकालना है वाटर का, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल. इस तरह से अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालना है तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल. सो इसके लिए अगर दोनों फॉर्मूले देखें तो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH. सो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमारे को पता है, H2O का निकालना नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए वेट इन ग्राम ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O. वेट इन ग्राम ऑफ H2O दे रखा है हमारे पास, अगर ध्यान से देखो कितने ग्राम पानी है, 120 ग्राम. सो वेट इन ग्राम ऑफ H2O 120 ग्राम दे रखा है, और मोलर मास है जो H2O का मोलिकुलर मास है वो 18 होता है. Then we can calculate number of moles of H2O. So in the same way, number of moles of methanol can be also calculated, as the formula is W number of moles of CH3OH, मतलब number of moles of methanol is equal to weight in gram of methanol and molar mass of methanol. Weight in gram of methanol given है in the numerical problem. How much methanol is there? 60 ग्राम of methanol या मिथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं. सो वेट इन ग्राम गिवन है 60 और इसका मोलर मास है वो 32 होता है. किसका, मीथेनॉल का, क्योंकि मीथेनॉल का फॉर्मूला है हमारे पास CH3OH, कार्बन का होता है 12 जो इसका एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ऑक्सीजन का 16 है प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है. तो अगर इसको करेंगे 12 3 × 1 3 16 प्लस 1, अगर इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा. इट इज़ द मोलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल. सो यहाँ पे हमने वही किया है, वेट इन ग्राम हमें दे रखा है मिथाइल अल्कोहल का 60 और इसका मोलिकुलर मास कितना है 32. सॉरी मैंने यहाँ 38 लिख दिया, ये कितना आएगा टोटल 32 आएगा. तो 32 जो हमारा आ गया इसका मोलर मास, तो कैलकुलेट करेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH. तो CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल के भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए और हमारे पास वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए. तो फॉर्मूला भी है मोल फ्रैक्शन का हमारे पास है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और ये पुट कर देंगे हम, वाटर के ये आए हैं और दोनों के प्लस करके नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH will be number of moles of CH3OH divided by H2O plus CH3OH. नंबर ऑफ मोल्स दोनों का सम कर देना है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH की वैल्यू पुट कर दी, H2O की वैल्यू पुट कर दी, मिथेनॉल की वैल्यू पुट कर दी, ये टोटल कर दिए, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल आ जाएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. These are on the basis of molarity and mole fraction. So that's all for today.